Today we are going to study RLC parallel circuit response. As you know, we have previously studied about the RLC series circuit and their responses. You remember the responses of RLC series circuit, right? They were the output responses of the circuit which is having resistor, inductor and capacitor in them, right? And we were studying them in case of series circuits, RLC series circuits. Now today what we are going to study? We are going to study RLC parallel circuits. Okay. Now look at the circuit. It is a parallel circuit. This circuit is a parallel circuit, right? It is having a resistor, an inductor and a capacitor. As we know that what we are going to study, we have also studied this previously, that what inductor is going to store in it, it is going to store in it uh, current I naught. Similarly, what capacitor is going to store in it, it is going to store voltage in it, right? So if we have to study this type of circuit, then we must consider those all the previous terms and all the previous formulas which we have started studying in this course, in this syllabus. Now consider the RLC circuit as shown in this figure. Assume initial inductor current is I naught and initial capacitor voltage is V naught. This one is V naught and this one is I naught. This is current across this branch. You know that as this is a parallel circuit, so we are having same voltage in all the branches, right? So when we are having same voltage in all the branches, then we will say that it is a parallel combination circuit. Now, secondly, we also know about the initial conditions. How can we find out the initial condition I across inductor? 1 over L integral V of t into dt. Similarly, we also know what is the formula for finding out the current across capacitor. It is C dV over dt. And initial condition I of 0 is equal to I naught and V of 0 is equal to V naught. Since the three elements are in parallel, they have same voltage. जैसे कि मैंने भी आप लोगों को पहले बताया. According to passive sign convention, the current is entering each element and okay, one thing जो कि हम लोग, मैं कहती हूँ फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या चीज़ है वो, कि हमारा करंट जहाँ से एंटर हो रहा है और जहाँ से लीव कर रहा है उसका साइन पॉजिटिव और नेगेटिव होगा. और ये कन्वेंशन आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं और इसको आपने हमेशा अपने जहन में रखना है, ठीक है ना. अच्छा, अब नेक्स्ट थिंग, हमने इसको एक नोड बना लिया. दिस वन इज आर नोड. इसका नाम हमने दे दिया V. दिस इज द ओनली नोड इन आर सर्किट. नोड पे क्या करते हैं, जब नोडल एनालिसिस पढ़ रहे होते हैं हम, वहां पे हम किरचॉफ्स करंट लॉ को अप्लाई करते हैं, ठीक है. अब इस सर्किट में हमने ये कहा कि ये एक नोड है. जब हम इस पे किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ से हमने फाइंड आउट किया, यह आया हमारे पास V ओवर R. फिर सेकेंड ब्रांच हमारे पास ये वाली है, 1 ओवर L इंटीग्रल V ऑफ टॉ इंटू डी ऑफ टॉ. प्लस थर्ड ब्रांच हमारे पास ये वाली है, C डी वी ओवर डी टी. ये तीनों क्या चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, ये तीनों हमारे करंट की वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस नोड V, राइट. अच्छा, अब अगला काम क्या करना है, अगला काम हमने करना है इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना है. तो जब मैं d ओवर डी टी अप्लाई करूंगी V ओवर R पे, प्लस टी ओवर डी टी अप्लाई करूंगी 1 ओवर L इंटीग्रल V ऑफ टॉ इंटू डी ऑफ टॉ पे, प्लस डी ओवर डी टी अप्लाई करूंगी C डी वी ओवर डी टी पे, और इसको फर्दर सॉल्व करूंगी तो मेरे पास ये वाली जो इक्वेशन है ये डिराइव हो जाएगी.
सबसे पहली चीज जहाँ पे डबल डेरिवेटिव आ गया वो ये वाली चीज है। अच्छा, एक तो इसका डेरिवेटिव लेना है, अगेन दूसरे नंबर पे इसको डिवाइडेड बाय सी करना है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो है वो अटेन हो जाएगी, और ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है RLC पैरेलल सर्किट की। अच्छा, दूसरा काम अगर आपको याद हो, हम सीरीज में क्या करते होते थे, हम जो डेरिवेटिव होता था डबल डेरिवेटिव उसको एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देते थे, जो सिंगल होता था उसको एस से रिप्रेजेंट कर देते थे। तो जब हम यहाँ पे उसको रिप्लेस करेंगे एस से, तो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम ऑब्टेन कर लेंगे। तो अगला स्टेप क्या होता है हमारे पास, अगला स्टेप होता है हमारे पास रूट्स फाइंड आउट करने का, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमने अल्फा और ओमेगा नॉट में अपने कंपोनेंट्स को स्पेसिफाई कर दिया होता है। तो जो अल्फा होता है हमारे पास वो होता है 1/2 RC, और जो ओमेगा नॉट होता है हमारे पास वो होता है 1/√LC। इसके ऊपर अगर मैं अंडर रूट डाल दूं और स्क्वायर डाल दूं तो हमारा सेम हो जाएगा। तो हमारे पास S1 होगा माइनस अल्फा प्लस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और S2 जो होगा हमारे पास वो होगा माइनस अल्फा माइनस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अच्छा, जब हमने रूट्स भी फाइंड आउट कर लिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो जनरल है हमने वो भी फाइंड आउट कर ली, उसके बाद अगली जो चीज़ हमारे पास आती है वो होती है कि हमने अपने रिस्पॉन्सेस कैसे देखने हैं। तो रिस्पॉन्सेस अगेन यहाँ पे भी हम वैसे ही देखेंगे जैसे हमने प्रीवियसली देखे थे कि अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, अल्फा इक्वल टू ओमेगा नॉट एंड अल्फा लेस देन ओमेगा। When alpha is greater than omega naught, then it is the overdamped case. L is greater than 4R square C. The roots of the characteristic equation are real and negative. जब आपके roots यानी कि S1 और S2 जो आप निकालेंगे वो आपके पास रियल होगा, उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा और नेगेटिव होगा। और जो अल्फा है आपका वो ग्रेटर देन ओमेगा नॉट होगा, तो आपका जो केस है वो ओवरडैम्प्ड केस है। और उसका जो रिस्पॉन्स है वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे V ऑफ t इज इक्वल टू A1 e रेज टू पावर S1 ऑफ t प्लस A2 e रेज टू पावर S2 ऑफ t। ये वो इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है, राइट। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस हमारे पास है क्रिटिकली डैम्प्ड केस। क्रिटिकली डैम्प्ड केस क्या होगा, वो केस होगा जिसमें अल्फा इक्वल है ओमेगा नॉट के। जब आपके पास अल्फा इक्वल है ओमेगा नॉट के तो आपके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल टू ईच अदर होंगे डेफिनेटली। और जो रिस्पॉन्स फाइंड आउट आपने करना होगा वो आपने इस इक्वेशन से फाइंड करना होगा, V ऑफ t इज इक्वल टू A1 प्लस A2 ऑफ t इनटू e रेज टू पावर माइनस अल्फा t। यह है हमारे पास क्रिटिकली डैम्प्ड केस इन केस ऑफ RLC पैरेलल सर्किट्स। थर्ड जो हमारे पास केस है वो है अंडर डैम्प्ड केस। अंडर डैम्प्ड केस में क्या होगा, अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट है। जब आपकी अल्फा की वैल्यू लेस देन ओमेगा नॉट आएगी तो ये हमें बताएगा कि हमारा जो केस है वो अंडर डैम्प्ड केस है। और इस केस में क्या होगा, रूट्स जो होंगे हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स होंगे और ये कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे, जैसे आयोटा या जे, जो भी आप कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं पैरामीटर वो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, ओमेगा डी हमारे पास कॉस के साथ जो भी वैल्यू आएगी वो ओमेगा डी होगी, जिसको ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर गिवन नहीं है तो, ठीक है।
और ये हमारे पास रिस्पॉन्स होगा। v ऑफ t इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस अल्फा टी a1 cos ओमेगा डी टी प्लस a2 साइन ओमेगा डी टी। अब ये जो तीन रिस्पॉन्सेज है ना आपके पास, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप अल्फा और ओमेगा नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अल्फा और ओमेगा नॉट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 2RC एंड ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। जैसे ही ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, साथ ही आपको अगला काम ये करना है, इनका कंपैरिजन स्टार्ट कर देना है कि अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है तो हमारे पास ओवरडैम्प्ड केस है। ओवरडैम्प्ड केस की इक्वेशन क्या है जी, ओवरडैम्प्ड केस की ये इक्वेशन है हमारे पास। इसके जो रूट्स फाइंड आउट करने होंगे आपको, वो क्या होंगे, वो क्या आने चाहिए आपके पास, वो रियल और नेगेटिव आने चाहिए आपके पास। अगर अल्फा इक्वल है ओमेगा नॉट के तो रूट्स आपके रियल होंगे और इक्वल होंगे। और रिस्पॉन्स कैसे फाइंड आउट करेंगे जी, इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। जब अंडर डैम्प्ड केस होगा आपके पास तो आपके रूट्स कम्प्लेक्स आएंगे, आयोटा की फॉर्म में आएंगे। और रिस्पॉन्स आपका कैसे फाइंड आउट होगा, रिस्पॉन्स आपका इस इक्वेशन से फाइंड आउट होगा। ये तीनों इक्वेशंस और इनके रूट्स के बारे में नो हाउ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मेमोराइज करना होगा। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपने देखा होगा हमारी जितनी भी रिस्पॉन्सेज की इक्वेशंस हैं यहाँ पे, उनमें एक कॉन्स्टेंट्स यूज हो रहे हैं हमारे पास। उन कॉन्स्टेंट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उन कॉन्स्टेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इनिशियल कंडीशंस होनी चाहिए, या अगर नहीं है इनिशियल कंडीशंस तो इनिशियल कंडीशंस को फाइंड आउट करना आना चाहिए। ये इक्वेशन हमारे पास है, v नॉट ओवर r प्लस आई नॉट प्लस सी डी वी नॉट ओवर डी टी इज इक्वल टू, ये कब है, एट t इज इक्वल टू 0। इसको अलाइन करने के बाद हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये वो इक्वेशन है जब हम कॉन्स्टेंट्स फाइंड आउट करने लगेंगे तो हमारे बहुत काम आएगी ये इक्वेशन। ये उसी सर्किट से जो पहले हमने फर्स्ट स्लाइड में सर्किट देखा था, इससे इसी से हमने इसको डराइव किया था इस इक्वेशन। अच्छा जी, इक्वेशन तक बात हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एक ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जो हमारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते, जो कुछ हमने अब तक पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करते। तो हम इसको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट हमें कह रही है, इन द पैरेलल सर्किट ऑफ फिगर बिलो फाइंड v ऑफ t फॉर t ग्रेटर देन 0 assuming v of 0 is equal to 5 volts, I of 0 is equal to 0 volts, L is equal to 1 Henry, C is equal to 10 millifarad. Consider these cases for R 1.923, R 5 ohms and R 6.25 ohms. अब ये तीन डिफरेंट केसेस हम स्टडी करेंगे। केस 1 में R की वैल्यू 1.923 होगी, केस 2 में R की वैल्यू 5 ohms होगी और केस 3 में R की वैल्यू 6.25 होगी। इन तीनों केसेस को वन बाय वन स्टडी करना है और देखना है कि हमारा जो सर्किट है, ये जो गिवन सर्किट है, ये कैसा रिस्पॉन्स हमें शो करता है। फर्स्ट केस, इस केस में R की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1.923 ओम्स है। सबसे पहले अल्फा एंड ओमेगा नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अल्फा इज इक्वल टू 1/2 आर सी, 1/2 आर की वैल्यू 1.923 है, मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू हमारे पास 10 मिली फैरेड विच इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻³ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अल्फा आ गया 26। उसके बाद ओमेगा नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अंडर रूट L इंटू सी, एल हमारे पास 1 है, सी अगेन 10 इंटू 10⁻³ है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 10 आ गई। अब अल्फा क्या है, अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है। कौन से वाला केस हो गया, जब अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है तो केस हमारे पास होगा ओवरडैम्प्ड का केस। ओवरडैम्प्ड के केस में जैसे ही हमें पता लगेगा कि अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है और ओवरडैम्प्ड का केस है, तो अगली चीज जो हमारे पास आएगी वो आएगी, जो
इसके रूट्स हैं वो रियल और नेगेटिव आने चाहिए हमारे पास। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो क्या आती है, उसकी इक्वेशन क्या होगी जब अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है, ओवर डैम्प का केस है, a1 e रेज टू पावर s1 ऑफ t प्लस a2 e रेज टू पावर s2 ऑफ t। जो रूट्स हैं उनकी वैल्यू इसमें पुट करनी होगी। अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अब रूट्स के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है माइनस अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, s1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा ठीक है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू डाल दें -26 प्लस अंडर रूट 26 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर विच इज इक्वल टू ठीक हो गया। पहला रूट s1 जो हमारे पास आया वो आ गया -2, ये वाला। सेकंड देखें, s2 हमारे पास आ गया -50, ये वाला। ठीक हो गया। तो हमारी पहली कंडीशन क्या थी, व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट देन द रूट्स वुड बी नेगेटिव एंड रियल, बोथ रूट्स आर नेगेटिव एंड रियल, राइट, and alpha is greater than omega naught. What would be our next thing? Next thing is this equation, right? V of t is equal to a1 e raised to power minus 2t plus a2 e raised to power minus 50t। इसको सॉल्व करना है जी। सबसे पहले इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर दो इसके ऊपर, t की जगह 0 डाल दो, एट t इज इक्वल टू 0, v ऑफ 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे e रेस टू -2t की जगह 0 डालें तो e रेस टू पावर -2t फॉर t इज इक्वल टू 0, ये क्या होगा, e रेस टू पावर -0 विच इज इक्वल टू 1। और दूसरे नंबर पे v ऑफ 0 की जो क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन गिवन थी वो क्या थी, 5 वोल्ट्स। इसको पुट करें तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है, 5 इज इक्वल टू a1 प्लस a2। दूसरे नंबर पे वही वाली इक्वेशन जो मैंने आपको कहा था आपको याद रखनी है, ये आपके बार बार काम आने वाली है, डी वी ऑफ 0 ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस वी ऑफ 0 प्लस आर आई ऑफ 0 ओवर आर सी। वैल्यूज पुट कर दें, वी ऑफ 0 5 है, आई ऑफ 0 0 है, ओवर आर सी की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास आ गया -260। अगला जो काम हमने करना है वो इस वाली इक्वेशन को डिराइव करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास डी वी ओवर डी टी आएगा। डी वी ओवर डी टी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, फर्स्ट वाला जो केस है, ए वन कॉन्स्टेंट, ई रेस टू -2t का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ई रेस टू -2t इंटू -2 आ जाएगा। सिमिलरली e रेस टू -50t -50a2 इंटू ई रेस टू -50t, ये इक्वेशन आ गई। इसमें t इज इक्वल टू 0 पुट करो तो डी वी ऑफ 0, डी वी ऑफ 0 ओवर डी टी की क्या वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, ये वाली, ये आई थी -260, -260 पुट कर दिया। यहाँ पे अगेन ई रेस टू 0 1 -2a1 -50a2 आ गया आपके पास। अब इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से
इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, इन दोनों से आपको A1 और A2 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। कैसे? अगर आप इक्वेशन नंबर ए को ले लें, 5 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 और इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो क्या आएगा? 25 इज इक्वल टू 2A1 प्लस 2A2। इसको जब कंपेयर करें बी से, इस वाली से, तो क्या आएगा? 5 इज इक्वल टू A1 प्लस A1 प्लस 2A2, 25 इज इक्वल टू, तो आप इसको कंपेयर करें, -260 इज इक्वल टू -2A1 -50A2। ये कैंसल आउट हो गया, ऐसे ही है। ये बचा जी -235 इज इक्वल टू -48A2। तो यहाँ से जो A2 की वैल्यू आई वो आपके पास आ गई जी 5.208। इस वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो A1 की जो वैल्यू आई वो आपके पास आई -0.208। ठीक है। अब क्योंकि आप इसको बहुत बड़ी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हो सकता है कि, सॉरी यहाँ पे मुझे 10 लिखना था, ये 25 मैंने गलती से लिख दिया था। ठीक है, ये भी 10 आ गया और यहाँ पे हमारे पास आया 250। ठीक है ना। अच्छा, जब हम बड़ी कैलकुलेशन कर रहे हैं और आपका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 5.3, तो इट डजेंट मैटर। छोटे मोटा एरर अगर आ रहा है तो इट डजेंट मैटर। पॉइंट के बाद छोटा मोटा अगर मेरा 5.208 आ रहा है, आपका 5.21 आ रहा है, तो इट डजेंट मैटर। ठीक है। मकसद क्या था? मकसद था जी A1 और A2 की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है जी, वो हो गई हमारी फाइंड आउट। जब ये वैल्यूज फाइंड आउट हो गई तो इसको इसमें हमने पुट कर दिया, ये वाली जो इक्वेशन है, जो हमारा रिस्पॉन्स है, इसमें पुट कर दिया। इसमें पुट करने के बाद हमारे पास ये आ गई। ठीक हो गया जी। हमारे पास A1 और A2 की वैल्यूज भी आ गई, हमारे पास जो रूट्स हैं उनकी वैल्यूज भी आ गई। अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में हमारे पास जो R की वैल्यू है वो है 5 ओहम्स। जब 5 ओहम्स R की वैल्यू है, R की वैल्यू चेंज हो रही है, तो हमारे पास अल्फा भी चेंज होगा। अल्फा चेंज हुआ, उसमें वैल्यूज पुट की, क्या रिजल्ट आया? हमारे पास 10 आ गया रिजल्ट। जो ओमेगा नॉट है वो कैसे फाइंड आउट होता है? ओमेगा नॉट 1/√LC फाइंड आउट होता है। ना L चेंज हुआ ना C चेंज हुआ। ठीक है ना। तो ओमेगा नॉट की भी वही वैल्यू रही जो हमने प्रीवियस केस में फाइंड आउट की थी, 10। अच्छा, अब यहाँ पे क्या केस हो गया? यहाँ पे हमारे पास अल्फा इक्वल हो गया ओमेगा नॉट के। जब अल्फा ओमेगा नॉट के इक्वल होता है, ये वाला केस आ गया, तो क्या होता है? तो हमारे पास क्रिटिकली डैम्प्ड केस होता है। क्रिटिकली डैम्प्ड केस, जैसे ही हमें पता लगा कि क्रिटिकली डैम्प्ड केस है, अल्फा इक्वल है ओमेगा नॉट के, तो हमें पता लग जाएगा कि जो रूट्स हैं S1 S2 वो रियल होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए, और जो उनका रिस्पॉन्स है वो फाइंड आउट होगा A1 प्लस A2t इंटू e⁻⁻⁴ से। अब देखते हैं। सबसे पहले जी रूट्स निकालना है, S1 और S2।
प्रीवियसली मैंने आपको निकाल के दिखाए हैं रूट्स, माइनस अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। जब उससे आप फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो आता है जी -10, यानी कि S1 और S2 दोनों इक्वल हैं -10 के। इसको आप सॉल्व करके देख भी सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है ये वाली इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में नेक्स्ट चीज़ क्या है, A1 और A2 की वैल्यू, ठीक है ना। A1 और A2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इनिशियल कंडीशन अप्लाई करें। इनिशियल कंडीशन क्या है, V ऑफ t की जगह t इज इक्वल टू 0 पुट करो, V ऑफ 0 पुट करो, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे t है A2 के साथ। जब t को 0 पुट करोगे तो A2 भी 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म हमारी कैंसल आउट हो जाएगी। बचेगा क्या, 5 जो कि गिवन थी इनिशियल कंडीशन इज इक्वल टू A1 ओनली। ई रेस टू माइनस 10 ऑफ टी वही अगेन 1 के इक्वल होगा। तो A1 की तो वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ से। उसके बाद अगेन डी वी ऑफ 0 ओवर डी टी में वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आया -100। उसके बाद अगला स्टेप होता है इस वाली इक्वेशन को डिराइव करो, इसको डिराइव करो। इसको डिराइव करने के लिए हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएगी। अब ये इक्वेशन कैसे आती है, ये इक्वेशन ऐसे आती है हमारे पास कि v ऑफ t इज इक्वल टू A1 e रेज टू पावर -10t प्लस A2 t e रेज टू पावर -10t। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा जी -10 A1 e रेज टू पावर -10t। ऐसे ही है। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे t और यहाँ पे भी t, तो क्या होगा, A2 कॉमन आ गया, हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, t फर्स्ट केस में ऐसे ही आ गया इंटू -10 e रेज टू पावर -10t, ठीक हो गया, प्लस दूसरे केस में t का डेरिवेटिव लेंगे जो कि हमारे पास है 1 डॉट e रेज टू पावर -10t, ठीक हो गया। इसको जब हम फर्दर खोलेंगे तो हमारे पास आएगा जी -10 A1 ये वाला इंटू ई रेज टू पावर -10t, ये कॉमन है बाहर। दूसरे केस में क्या आ जाएगा, 10 ये वाला 10 -10 A2 t e रेज टू पावर -10t। थर्ड केस में क्या आ जाएगा, जस्ट ये वाला A2 जो बाहर था हमारे पास इंटू ई रेज टू पावर -10 ऑफ t, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन t इज इक्वल टू 0 पुट करो। t इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद यहाँ से जो इसकी वैल्यू निकाली थी वो आई थी -100, -100 डाल दी। यहाँ पे -10 A1 आ गया, प्लस ये वाली टर्म हमारे पास इक्वल टू 0 हो गई, t लगा हुआ साथ, इंटू A2 के साथ e रेज -10t था तो A2 आ गया, ठीक है जी। अगेन A1 की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं 5, इसमें ये वैल्यू पुट करो तो A1 हमारे पास 5 और A2 हमारे पास क्या आ गया, -50 आ गया, ठीक हो गया। अब इस वैल्यू को इस रिस्पॉन्स में पुट कर दें तो v ऑफ t इज इक्वल टू 5 -50t e रेज टू पावर -10t वोल्ट्स आ गया, केस 2 जब r इज इक्वल टू 5 है और हमारे पास इसका जो रिस्पॉन्स है वो क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स। अब हम आते हैं जी थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस में r की वैल्यू चेंज होके कहाँ चली गई, 6.25 ओहम्स पे चली गई। अगेन आर की वैल्यू चेंज हुई, अल्फा चेंज हो गया, अल्फा की वैल्यू आ गई 8। ओमेगा नॉट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ हमारे पास, तो वो वही 10 रह गया। अब इस केस में क्या हो गया, इस केस में हमारे पास अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट हो गया। जब अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट का केस था हमारे पास, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हमारे पास अंडर डैम्प्ड केस था और हमारे पास जो रूट्स आने थे वो कम्प्लेक्स फॉर्म में आने थे, आयोटा या जे की फॉर्म में आने थे। और उसका जो रिस्पॉन्स था वो था ई रेज टू माइनस अल्फा टी A1 कॉस ओमेगा डी टी प्लस A2 साइन ओमेगा डी टी। अगर ओमेगा डी गिवन नहीं है तो आपको फाइंड आउट करना होगा यहाँ से। नाउ लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। रूट्स फाइंड आउट करने हैं जी सबसे पहले हमें।
माइनस अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये वाला रिस्पॉन्स, ये लिख लिया हमने। ओमेगा डी की वैल्यू निकाल लीजिए, ये 6 आ गई, अल्फा की वैल्यू -8t आ गई। जनरल इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज पुट की तो हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। ये जो वैल्यू है अब आपके पास, ये वाली 6, ये वैल्यू है, ये वाली, इससे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। ये भी इक्वेशन हमने यहाँ पे बना दी फाइनल। अब इसके अंदर अगेन क्या चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है? A1 और A2। t इज इक्वल टू 0 पुट करो, t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा जी v ऑफ 0 इज इक्वल टू A1 cos 0 प्लस A2 साइन 0, और बाहर हमारे पास e रेज टू पावर 0। तो हमारे पास cos 0 जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है 1 के इक्वल। तो ये आ गया A1 डॉट 1 प्लस साइन 0 किसके इक्वल होता है? 0 के, तो A2 डॉट 0, और बाहर हमारे पास आ गया 1। तो हमारे पास क्या आया? v ऑफ 0 इज इक्वल टू A1। v ऑफ 0 की वैल्यू गिवन थी हमारे पास 5, तो हमारे पास यहाँ पे आ गई A1 की वैल्यू जो कि 5 है इस स्टेप। अगला स्टेप क्या है? वही वाला v ऑफ 0 प्लस r i ऑफ 0 ओवर आर सी। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा -80। अगेन अब इस वाली इक्वेशन को हमने डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक हो गया। अब डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? अगेन यहाँ पे अगर हम देखें तो डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी इंटू A1 cos 6t इंटू ई रेज टू पावर -80 प्लस डी ओवर डी टी इंटू A2 साइन 6t ई रेज टू पावर -80, ठीक हो गया। अब इसको अगर सेपरेटली देख लें, पहले मैं इसको देख लूँ तो क्या होगा? A1 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, cos 60 में ऐसे ही लिख दूँ, डॉट ई रेज टू -80 का डेरिवेटिव ले लूँ तो क्या आएगा? -8 ई रेज टू पावर -80, ठीक हो गया। दूसरे केस में क्या होगा? प्लस कॉस का डेरिवेटिव ले लो और ई रेज टू -80 ऐसे ही आ जाएगा। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास? कॉस का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस साइन, ऐसे ही है। तो यहाँ पे आ जाएगा जी -sin 6t और साथ में डॉट 6 ऑफ t का डेरिवेटिव लें 6 और ई रेज टू पावर -80 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास आएगा जी -8 cos 6t प्लस -6 sin 6t, और बाहर आ जाएगा हमारे पास ई रेज टू पावर -80 इंटू A1। ये पहले वाले का था, इस वाले का। अब दूसरे का ले लें। दूसरे वाले का मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, A2 बाहर आ गया, दोनों के साथ है, ठीक है जी। साइन 6 ऑफ टी ऐसे ही आ गया, आगे -8 ई रेज टू पावर -8 ऑफ टी आ गया, प्लस साइन ऑफ टी का डेरिवेटिव ले लो दूसरे केस में तो आ गया हमारे पास cos 60 इंटू 6 इंटू ई रेज टू पावर -80, और बाहर हमारे पास A2 आ गया। जब इसको और इसको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आता है जी -8 A1 cos 60, ये वाला पहले वाला,
-8 A2 sin 60 ये वाला, -6 A1 sin 60 ये वाला, +6 A2 cos 60 ये वाला, into e⁻⁻8। अगेन t इज इक्वल टू 0 पुट करो, साइन ऑफ 0 किसके इक्वल होता है, 0 के, कॉस ऑफ 0 1 के इक्वल होता है, तो ये वाली इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। इस इक्वेशन में जो a1 की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट की थी उसकी वैल्यू को पुट करें तो a1 5 और a2 -6.66 आ गया। उसमें टोटल में आप ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करें तो ये आपके पास रिस्पॉन्स आ गया आपके केस नंबर 3 का, जो कि हमारे पास अंडर डैम्प्ड केस। जो केस 1 था r इज इक्वल टू 1.923, अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट था, ओवर डैम्प्ड का केस था, ये हमारे पास रिस्पॉन्स था। जो सेकंड केस था r इज इक्वल टू 5 ओहम्स, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट था, क्रिटिकली डैम्प्ड केस था, और ये हमारे पास फाइनल रिस्पॉन्स आया रूट्स और कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद। जो थर्ड केस था हमारे पास जहाँ पे r इज इक्वल टू 6.25 था, अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट था, रूट्स हमारे पास इमेजिनरी आए, अंडर डैम्प्ड केस, और ये हमारे पास उसका रिस्पॉन्स आया आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट्स। अब ये समझने के बाद आपको ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है ये खुद से सॉल्व करनी है अपनी प्रैक्टिस के लिए, ताकि ये पता चल सके कि आप लोगों की कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकी। ठीक है।